Hello students, welcome to the Gen classes. This is my lecture 7 which is for the 12th student IT, and today we will see about the ordered list or the number list, unordered list or the bulleted list, and the third one is the listed list. Okay, for that firstly open the notepad plus plus. Notepad plus plus. Take the new file. Take the new file in which I will write the HTML tag open and HTML tag close. Just save it. We will save it in the G drive. Lectures on the YouTube. Lecture. This is my lecture 7. That's why I will save the lecture 7 dot HTML. Okay, and just save it. Now I will take the body tag open, so body tag close. In the body tag I will write the firstly I will create the unordered list. That's why I will write the department. In the department I want to create the UL stands for the unordered list and UL stands for unordered list, so UL start and UL tag close. In the UL tag I will write the list. I will put the list tag means li tag open, li tag close, again li tag open, again li tag close. In the li tag I will write the computer, then computer. Department is the arts, commerce and science. You can write the computer, then science, and again list tag open close. In the list tag I will write the computer science and arts, and again commerce. Just save it and now run it. Lecture 7. This one is lecture 7. Just run it. You can see the department, then computer science, arts and commerce. You can see here there are the bullets are showing here, right? If you want square instead of this bullet, we will write the UL type equals to disk. Okay, just save it. Now I want square na, that's why I will write square. Just save it. Now run it. Just refresh. You can see instead of the bullets we created the square. Okay, now I want the disk, that's why I will write circle. Just save it. Just refresh it. You can see hollow circle is created. That means यहाँ पे एक सर्कल अपन ने क्रिएट किया हुआ है जो कैसा दिख रहा है, सिर्फ ओनली सर्कल दिख रहा है बट ब्लैंक सर्कल दिख रहा है.
और अगर मैं ये ब्लैंक सर्कल की जगह पे डिस्क लिखती हूँ या फिर कुछ भी नहीं लिखूँगी तो भी क्या आएगा, वो डॉट के फॉर्म में आएगा। डिस्क, जस्ट सेव इट एंड नाउ रन इट। ओके, इसे क्या बोलते हैं, इसे अपन लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं। तो मैं पैराग्राफ में लिख लूँगी, पैराग्राफ में अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, जस्ट सेव इट, नाउ रन इट। अनऑर्डर्ड लिस्ट आ गया, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट आया। इसको अगर मुझे बैकग्राउंड, सॉरी, इसको CSS में डाल दो। पैराग्राफ का आईडी क्रिएट करो, पैराग्राफ का आईडी इक्वल्स टू para1, डबल कोट कंप्लीट करो, इसको सेव करो। और अपन लोग स्टाइल टैग कहाँ पे डालते हैं, हेड टैग के अंदर, हेड टैग के अंदर, हेड टैग के अंदर क्या करना है, स्टाइल टैग लेना है, स्टाइल टैग लेना है। और स्टाइल टैग के अंदर स्टाइल टैग लेना है और स्टाइल टैग में पैराग्राफ। अब पैराग्राफ को बैकग्राउंड कलर देना है। बैकग्राउंड कलर कौन सा देना है, ऑरेंज, सेमीकोलन, जस्ट सेव इट एंड नाउ रन इट। आ गया, ये हो गया अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, जिसके अंदर डॉट आते हैं, स्क्वायर आते हैं या फिर डिस्क आता। ओके, नाउ आई वांट दी अनऑर्डर्ड, now I want the ordered list. That's why I will write the in the paragraph tag, in the paragraph tag, unordered list, sorry, ordered list, ordered list, ordered list यानी पर्टिकुलर ऑर्डर में क्या हो रहा है, ये लिस्ट आ रही है, ऑर्डर लिस्ट आ रही है, ऑर्डर लिस्ट है। और OL टैग से मैं क्लोज कर रही बिकॉज ये ऑर्डर लिस्ट है। ठीक है, अब ऑर्डर लिस्ट के अंदर LI टैग ले रही हूँ, लिस्ट टैग, और लिस्ट टैग मैं क्लोज कर रही हूँ। और लिस्ट टैग के अंदर, लिस्ट टैग के अंदर मैं क्या लिख रही हूँ, गुजराती, गुजराती। देन अगेन लिस्ट टैग ले रही हूँ, लिस्ट टैग क्लोज कर रही हूँ। लिस्ट टैग के अंदर गुजराती की जगह पर अब क्या लिख रही हूँ मैं, हिंदी। और अगेन मैं लिस्ट टैग ले रही हूँ और मैं लिस्ट टैग क्लोज कर रही हूँ, हिंदी की जगह पे इंग्लिश ले रही हूँ। जस्ट सेव इट, नाउ रन इट, रिफ्रेश। क्या आया यहाँ पे गुजराती, हिंदी और इंग्लिश आया। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 1 2 3 आ रहा है। ये 1 2 3 की जगह पे अगर मुझे ABC चाहिए तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट है, ऑर्डर लिस्ट में मैं टाइप लिखूँगी। ऑर्डर लिस्ट के अंदर मैं टाइप लिखूँगी, टाइप इक्वल्स टू डबल कोट, डबल कोट। टाइप में क्या लिखूँगी, कैपिटल A। जस्ट सेव इट, जस्ट सेव इट एंड नाउ रन इट। ठीक है, क्या आया यहाँ पे, ABC आ गया। अब मुझे ABC की जगह पे स्मॉल ABC चाहिए तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ऑर्डर टाइप में स्मॉल A लिखूँगी। जस्ट सेव इट, जस्ट सेव इट एंड रन इट। स्मॉल ABC आ गया। अगर आपको रोमन वैल्यू चाहिए तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे कैपिटल है। जस्ट सेव इट, अब रोमन वैल्यू में आना चाहिए। आ गया, 1 2 3 आ गया। ठीक है, इसको क्या बोलते हो, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट के बाद में मैं पैराग्राफ अगेन बना रही हूँ बिकॉज मुझे नेस्टेड और नेस्टेड लिस्ट चाहिए। दैट्स वाई मैं क्या करूँगी, यहाँ पे क्योंकि अपना थर्ड टॉपिक कौन सा है, नेस्टेड लिस्ट का। अब नेस्टेड लिस्ट में क्या करेंगे अपन, यहाँ पे पैराग्राफ में लिखती हूँ नेस्टिंग ऑफ लिस्ट,
नेस्टिंग ऑफ लिस्ट। और नेस्टिंग ऑफ लिस्ट में क्या लिखना है? नेस्टिंग ऑफ लिस्ट में पैराग्राफ, सॉरी, नेस्टिंग में पहले अनऑर्डर्ड वाला क्रिएट करेंगे, फिर उसमें ऑर्डर्ड डाल देंगे। ठीक है, नहीं तो पहले ऑर्डर्ड वाला क्रिएट कर लेते हैं। ऑर्डर लिस्ट, और ऑर्डर लिस्ट को क्लोज कर रहा है। अब ऑर्डर लिस्ट के बाद में ऑर्डर लिस्ट के अंदर एक लिस्ट टैग ओपन, अगेन लिस्ट टैग क्लोज, अगेन लिस्ट टैग ओपन, अगेन लिस्ट टैग क्लोज, अगेन लिस्ट टैग ओपन, अगेन लिस्ट टैग क्लोज। ठीक है, और अगेन लिस्ट टैग के अंदर, लिस्ट टैग के अंदर लिख रही हूँ मैं जावा, जावा PHP, जावा PHP और ASP.NET, जावा PHP और .NET। ठीक है, अब ये ऑर्डर लिस्ट है तो यहाँ पे 1 2 3 के मैनर में आना चाहिए ये। जस्ट सेव इट, नाउ रन इट। ठीक है, नेस्टिंग ऑफ लिस्ट में जावा PHP आ गया। अब मुझे जावा को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, तो मैं क्या लिखूँगी यहाँ पे? जावा के अंदर मैं क्या कर रही हूँ? एक लिस्ट टैग ओपन कर रही हूँ, अब ऑर्डर लिस्ट के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट चाहिए, तो मैं क्या कर रही हूँ? यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट ओपन कर रही हूँ और अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्लोज कर रही हूँ। ठीक है, अब अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर लिस्ट टैग ओपन कर रही हूँ, लिस्ट टैग क्लोज कर रही हूँ, अगेन लिस्ट टैग ओपन कर रही हूँ, अगेन लिस्ट टैग क्लोज कर रही हूँ, अगेन लिस्ट टैग ओपन कर रही हूँ, अगेन लिस्ट टैग क्लोज कर रही हूँ। ठीक है, अब लिस्ट टैग के अंदर 3 टाइप के कोर जावा, देन नीचे एडवांस जावा, और थर्ड है एंटरप्राइज जावा। जस्ट सेव इट, नाउ रन इट। क्या आया? जावा ये 3 पार्ट में डिवाइड है, कोर जावा, एडवांस जावा और एंटरप्राइज जावा। ये सर्कल की जगह पे मुझे डॉट चाहिए होगा, तो मैं क्या करूँगी? यहाँ पे टाइप लिखूँगी, टाइप इक्वल्स टू डबल कोट में क्या लिखूँगी? डिस्क। जस्ट सेव इट एंड रन इट। डिस्क की जगह पे सर्कल लिखो, just save it, now run it। The template page from the Estomania English translate। Type circle square, just save it, now run it। आ गया। ठीक है, कोर जावा, एडवांस जावा, स्क्वायर आ गया। ओके, अब मुझे .NET को भी 3 पार्ट में डिवाइड करना है, तो मैं क्या कर रही हूँ? .NET में भी अनऑर्डर्ड लिस्ट लगा रही हूँ, अनऑर्डर्ड लिस्ट ओपन, देन अनऑर्डर्ड लिस्ट क्लोज, और अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर लिस्ट टैग ओपन कर रही, लिस्ट टैग क्लोज कर रही, अगेन लिस्ट टैग ओपन कर रही, अगेन लिस्ट टैग क्लोज कर रही, अगेन लिस्ट टैग ओपन कर रही, अगेन लिस्ट टैग क्लोज कर रही।
ठीक है। अब ये लिस्ट स्टैक के अंदर डॉट नेट में कौन कौन से रहते हैं अपना, एक ASP डॉट नेट रहता है, दूसरा VB डॉट नेट रहता है, और थर्ड वन C# डॉट नेट रहता है, C# डॉट नेट रहता है। जस्ट सेव इट एंड नाउ रन इट। आ गया। अब ये सर्कल, हॉलो सर्कल की जगह पे मुझे अगर स्क्वायर चाहिए होगा तो मैं क्या करूँगी, अब अगेन यहाँ पे टाइप लिखूँगी, टाइप इक्वल्स टू डबल कोट में क्या लिखना है, स्क्वायर। जस्ट सेव इट नाउ रन इट। आ गया स्क्वायर। दिस इज ऑल अबाउट द nesting of loop and the ordered list, unordered list and the nesting of loop. Thank you so much. If you like my video, please like, subscribe and share. Thank you.